today we will discuss the MCQs of the chapter, the cell structure and function. Basically, we'll discuss the model papers and the past papers of UHS and MDCAT from 2008 till 2020. So let's start. So the first question ये है कि Robert Hooke was the first person to see cells. उसने कहाँ cells देखा था, किसके अंदर देखा था? तो अगर बात यहाँ पे की जाए तो उसने सेल देखा था कॉर्क के अंदर. ठीक है, इससे कॉर्क के अंदर देखा था सेल्स. द कॉन्सेप्ट ओमिने सेल्यूला ए सेल्यूले मीन्स द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ये होगा प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स. आगे बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज व्हाट? सेल. The ability to distinguish between two separate points, किसको the separate points object is, तो उसको हम बोलते हैं resolution. आगे बोलता है if 15 micrometer size object is observed on a light microscope using 5x eyepiece and 10x objective, its magnified image size will be 750. ये कैसे हुआ? तो बेसिकली हमने 5x को मल्टीप्लाई किया 10x से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो हमारे पास कुछ 750 माइक्रोमीटर आता है. आगे बोलता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ, तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. आगे प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन व्हाट? तो प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स. आगे है कि let's take a nice color. Sorry. आगे हम पास ये बोल रहा है out of the given options choose the one which shows the structures only found in plants. तो only found in plants is what? तो क्लोरोप्लास्ट, सेल वन, वैक्यूल से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फाउंड होते हैं सिर्फ हमारे पास सेल के अंदर. अच्छा, आगे बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स. आगे है सेलेक्ट द ऑर्गेनल विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल. तो एनिमल के अंदर सेंट्रियोल होता है, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑर्गेनल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? कॉमन ऑर्गेनल, so that is peroxisome. आगे plasma membrane is chemically composed of what? तो lipids and proteins. The dash model of plasma membrane suggests that proteins are embedded in lipid bilayer. तो यहाँ बच जाएगा fluid mosaic. आगे बोलता है fluid mosaic model of plasma membrane states that protein molecules float in a fluid dash bilayer, phospholipid bilayer. The basic structure of plasma membrane is provided by phospholipid. The intake of liquid material across cell membrane इसको बोलते हैं pinocytosis. The rapid exchange of materials through the carrier protein across the plasma membrane is called rapid exchange of materials through carrier proteins. अगर मैं यहाँ पर नाम दे दिया, एक स्पेसिफाई कर दिया carrier proteins, कैरियर ने बता दिया है राइट, तो ये हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगी. आगे बोलता है टेकिंग इन ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल इज नोन एज व्हाट? फैगोसाइटोसिस. ठीक है. अच्छा, पैसिव प्रोसेसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आए. बात कर दी है पैसिव की, तो पैसिवली तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ही होता है. आगे द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज साइटोसोल. ठीक है. आगे बात करता है द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ फ्लूइड दैट रिमेन्स व्हेन ऑल द ऑर्गन्स आर रिमूव्ड, तो इट इज नोन एज साइटोसोल. Detoxification of harmful drugs within the cell is done by smooth surface endoplasmic reticulum.
The semicircular channels and systems of tube found in the cytoplasm are known as endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum contains a system of flattened membrane-bounded sacs which are named as cisternae. Which of one of the following cell structures is involved in the synthesis of lipid? That is smooth endoplasmic reticulum. The organelle involved in detoxification of drugs and poison in the liver cells, that is smooth endoplasmic reticulum. आगे बोलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स. A group of ribosomes attached to a messenger RNA is known as polysome. ठीक है. Ribosomes exist in two forms, either attached with the rough endoplasmic reticulum or freely dispersed in the cytoplasm. Ribosomes are tiny organelles which are involved in the synthesis of protein. Ribosome present in prokaryote, that is 70S. Which of the following organelle consists of two subunits? Ribosome. Site of protein synthesis is ribosome. Ribosomes are made up of RNA and protein. Which one of the following modifies proteins and lipids by adding carbohydrate? तो ये किसका काम है? गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी का काम होता है. Which one of the following organelles concerned with cell secretion? तो गोल्जी apparatus cell secretion करते हैं, फ्लेग्मोब्लास्ट बनाता है. ठीक है, चलते हैं आगे. The cisternae breaks up into vesicles from dash and dash of Golgi complex. Cisternae breaks up into vesicles from dash of breaks up, मतलब breaks up से मुराद यहाँ पे क्या हो सकता है? तो cisternae breaks up into vesicles मतलब टूटती है वेसाइकल के अंदर, मतलब निकल रही है. तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव और मैच्योरिंग फेस. ये हो सकता है. इसकी हम पीस चेक करते हैं. 37 को क्या होगा? 37 इसके अंदर मिसिंग है. 37 की नहीं दी गई. चले हम इसको देख लेंगे. आगे बोलता है Tay-Sachs disease is due to the presence of an enzyme that is inverted in catabolism of. अच्छा, Tay-Sachs की डिजीज़ होती है वो presence of an enzyme that is inverted in the catabolism. तो इसकी Tay-Sachs की डिजीज़ होती है ना, हमारे पास माइलिन शीट बेसिकली स्फिंगोलिपिड की वजह से होती है. तो हम लिख सकते हैं एज एन लिपिड, बट वील verify this thing. 38DS. The enzymes of lysosomes are synthesized on. तो लाइसोसोम खुद एक वेसाइकल है जो कि निकलता है गोल्जी बॉडी से. तो हम बोल सकते हैं गोल्जी एपरेटस. 39D 39B यहाँ दिखा रहा है. 39B रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अच्छा, इसको देखते हैं. द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन. इसके एंजाइम्स कहाँ बनते होंगे? अच्छा देखिए, एंजाइम्स हमारे पास क्या चीज़ है? देखिए, एंजाइम्स हमारे पास है प्रोटीन. ठीक है, और प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन हमने बड़ा पढ़ा था गोल्जी बॉडी के अंदर सिर्फ मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट के साथ. प्रोटीन की लिपिड ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको लिपिड बना दिया, कुछ बना दिया. तो एंजाइम की जब बात होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो जाएगा. ठीक है, ये ओके सर. The processes by which unwanted structures within the cell are engulfed and digested with lysosome is known as what? इसको हम बोलते हैं ऑटोफेगी. हम बोल सकते हैं राइट, ऑटोफेगी. सही है. अच्छा, इसकी भी की हमारे पास गिवन नहीं है इसके अंदर, बट हम देख सकते हैं इसको. यस, इसको ऑटोफेगी ही बोलेंगे. द स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ
old organelles, तो दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, आगे बोलता है सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑटोफेगी। ठीक है, आगे बोलता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन इन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कॉल्ड व्हाट, दिस ग्लाइऑक्सीसोम बेसिकली, ग्लाइऑक्सीसोम। एक मिनट, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल नोन एज, ये पेरोक्सीसोम भी हो सकता है हमारे पास, ग्लाइऑक्सीसोम भी हो सकता है, ग्लाइऑक्सीसोम एंड पेरोक्सीसोम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसको देखते हैं, 43 हमारे पास डी है। तो ये पेरोक्सीसोम ही होगा क्योंकि 3 एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोलाइड साइकिल हमारे पास पेरोक्सीसोम के अंदर होती है। टोनोप्लास्ट बाउंड्स टू विच ऑर्गेनल, तो वैक्यूल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिलेंडर इन स्ट्रक्चर, सिलेंडर कौन सा होता है? सिलेंडर से मुराद यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो 25 माइक्रोमीटर कुछ होता है एंड माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं। तो 45 का क्या है, बी। मोस्ट सिलेंडर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स होंगे। ठीक है, अगर the microtubules of spindle fibers are composed of a protein called what, tubulin। ठीक है, in cross section each centriole consists of a 9 each and triplets of what, of microtubules। ठीक है, centrioles are made up of dash microtubule, कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है? तो ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। असल में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कुछ ट्रिपलेट्स मौजूद, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, तो यहाँ पे 11 ट्रिपलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 11 ट्रिपलेट्स मौजूद होते हैं, तो उससे होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, which of the following structures is absent in higher plants and found in animal cells? तो सेंट्रियोल हमारे पास प्लांट्स के अंदर नहीं होता, वो एनिमल्स के अंदर सिर्फ होता है। ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेंट्रियोल से बनते हैं। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल? ट्रिपलेट्स 9, सॉरी मैंने ऊपर 11 बोला आप लोगों को, लेकिन ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। किसके? बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपलेट्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बना दिया। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 27। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी। At the beginning of nuclear division, the number of microtubules prepares into pairs of centrioles that migrate to opposite poles are। जब न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होती है और माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स जो कि इन 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स दैट माइग्रेट टू अपर पोल्स आर। अब यहाँ पे तादाद पूछ रहा है मुझसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने 2 पेयर्स जाएंगे, तो 36 जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहा है द स्ट्रक्चर दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल आर। तो वहाँ बस माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। आगे बात करें द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड टू फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं क्रिस्टाई।
In mitochondria, small knob-like structures called F1 particles are found in the basically inner membrane में मेरे पास ना ये होते हैं, तो inner membrane क्या, ठीक है, ये हो गया inner membrane. I'm sorry for the delay. आगे बोल रहा है which one of the following is a site of oxidative phosphorylation in mitochondria. तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है. Organelle involved in the synthesis of ATP is mitochondria. Which organelle is bounded by two membranes? तो mitochondria की दो membrane हैं. Organelle involved in aerobic respiration, mitochondria. The inner membrane of mitochondria form external enfoldings are called क्रिस्टाई. ठीक है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस. कलरलेस लीकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस होते हैं. ठीक है. आगे बात करें तो हमारे पास है इन द प्लांट सेल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. आगे बोल रहा है इन इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डिवाइड इनटू हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स नोन एज स्ट्रोमा. हमारे पास नहीं, एक मिनट. इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डिवाइडेड हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ग्रेना मौजूद होते हैं. ठीक है. आगे बोलता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इन्वोकांट लिव इंडिपेंडेंटली. करेक्ट बोलना है ना. अगर मैं यहाँ पे देखूँ 70 राइबोसोम्स इज अटैच विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट. क्योंकि हमारे पास एक थ्योरी थी पहले जिसको बोलते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी. ठीक है. तो इसके मुताबिक हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर ये अंदर आ गए थे, इनगल्फ कर दिए गए थे. खैर. Among following, which cellular organelle contains circular DNA similar to those found in bacteria? तो I'm sorry. तो ये हमारे पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. आगे बात करते हैं. ओके, एक मिनट. तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया. ठीक है. आगे अगर मैं इसको देखूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस. तो मेरे पास लीकोप्लास्ट होता है, वो कलरलेस होता है. इन जनरलाइज प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस द साइड ऑफ सेल. क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रल वैक्यूल होता है. द राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन व्हाट. राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड और स्टोर कहाँ किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यहाँ प्रोटीन बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्रोमोसोम. राइबोसोमल RNA की बात की गई है, तो हम यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी हो सकता है. 68 अगर हम देखें यहाँ पे 68B की बात हो रही है यहाँ पे. हाँ, न्यूक्लियोलस सही है. The outer membrane of the nuclear envelope is at a place continuous with, or nuclear membrane is continuous with endoplasmic reticulum. The function of nucleolus is to make what? Ribosome. Ribosome बनाता है. The function of nucleolus is to make what? राइबोसोम ही था मेरे ख्याल से, तो फिर भी देख लेते हैं. 70C yes. ठीक है. इन प्रोकैरियोट सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग मटीरियल इज व्हाट? इज बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल से मुराद यहाँ पे प्रो मीन्स बिफोर. ठीक है. तो यहाँ पे सेलुलोज हो जाएगा. नहीं, सेलुलोज नहीं होगा, सॉरी, पेप्टिडोग्लाइकन हो जाएगा, क्योंकि प्रो मीन्स बिफोर. बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे. 71. अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट यही होगा. ठीक है. द इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफन रिगार्डेड द सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड
कैप्सूल में भी देखते हैं। 72 डी की बात कर रहा है यहाँ पे। 72 सेक्यूलस, ओके, इसका ये सेक्यूलस बोल रहे हैं, तो पॉइंट टू बी डू रिसर्च। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। Which one of the following structures present in both animal and plant cells but absent in prokaryotic? एब्सेंट है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बट मौजूद है प्लांट एंड एनिमल के अंदर। सेंट्रियोल प्लांट के अंदर नहीं होता, एनिमल के अंदर होता है। प्लास्टिड प्लांट के अंदर नहीं होता, प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। सीव ट्यूब्स प्लांट्स का है, तो 74 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं 74B। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा, अगर अब हम बात करें, हमें अब रिसर्च करनी थी सेक्यूलस के बारे में, कीवर्ड सेक्यूलस क्या चीज़ है, राइट? तो लेट्स research about this first. अच्छा, ये सेक्यूलस क्या बोल रहा है? दैट स्मॉलर ऑफ द टू फ्लूइड फिल्ड सेक्स फॉर्मिंग पार्ट फॉर लिबेरेंट इन द इनर। अच्छा, ये तो इनर ईयर के अंदर आ चुका है। ये इंसेक्ट्स की बात हो रही है, हमें बोले थे इंटायर सेल वॉल बैक्टीरिया ऑफन रिगार्ड द सिंगल पीस मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पे यही चीज़ लिख लेते हैं, द इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, अच्छा, ये तो पेप्टिडोग्लाइकिन आ रहा है हमारे पास, पर देखते हैं इंटायर सेल वॉल रिगार्ड सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकिन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया हुआ। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन, और ना ही हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर का भी नाम दे दिया इन्होंने, बट दिया हुआ नहीं है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर सेक्यूलस, फिर देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ठीक है, मोस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ रिलेटिवली थिक continuous cell wall often called as seculus which is composed largely of peptidoglycan, mucopeptide और म्यूरिन। अच्छा, ये बोल रहा है कि हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनकी तो बहुत मोटी हमारे पास सेल वॉल होती है, उस पोर्शन को हम सेक्यूलस भी बोल लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सेक्यूलस का वर्ड दे दिया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है ये। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो आपको पता चल गया ये वर्ड नया एक आपकी डिक्शनरी में एक नई चीज़ आ गई, सेक्यूलस। ठीक है, बाकी तो आई गेस बहुत ही ज़्यादा आसान थे, आपको समझ आ गए होंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ इसके अंदर आपको कुछ बहुत सारे न्यू MCQs भी देखे होंगे, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट देखे होंगे। थैंक यू।